Okay. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very Hare much. Krishna. On this auspicious day of the appearance of Lord Jesus Christ, 25th December, Christmas Day here in the US. Everybody has a day off today, and a nice way to have some devotee association, although virtually. We have a very special guest speaker with us. So originally we were going to hear from Krishna Bhakta Prabhu, but Krishna Bhakta Prabhu is under the weather. And so in his place, we have the fortune of hearing from His Grace Govinda Bhakta Prabhuji. Just a brief introduction about him. Prabhuji came in contact with ISKCON in 1995 during his engineering college days. By profession, he's a civil engineer. He received initiation from His Holiness Radhanath Swami Maharaj in 1996. He moved to ISKCON Pune as full-time preacher in 1996. And since then, he served in many ISKCON temples as a full-time devotee and part of PMC Project Management Council for the construction of more than 10 temples in last 2 decades. He has served in different levels in our organization as preacher, gave various discourses in schools, colleges, different educational and management institutes. As an engineer, helped to construct the Bhaktivedanta Hospital, Pandharpur Temple, Ujjain Temple, Aravde Temple, Noida Temple, new phase of ISKCON Juhu, ISKCON Kanpur, ISKCON Solapur, etc. Bhaktivedanta Mission School at Juhu, Goshala and Farm Community at Vrindavan, renovation of Vrindavan Temple, and construction of kitchen and Govinda's restaurant at Vrindavan. He also helped to organize first Rath Yatra festival in Belgaum, Mangalore, Solapur, Nigari, Satara, Sangli, Jhansi, Ujjain. He's delivered Bhagavad Katha in different occasions at different places as a yoga and nephropathy instructor, helping devotees to maintain their good health for good sadhana. In 2008, he was teacher for Bhakti Vaibhav course conducted by MIHE. Presently, he's conducting Bhakti Shastri courses in Phoenix, Arizona. For last 2 decades, he has delivered hundreds of lectures in Hindi, Marathi, English languages on Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and various Gaudiya literatures in India and abroad. He conducts virtual Braj Mandal Parikrama for the people of far end who are not able to visit Raj Mandal due to various reasons. After working in MNC for 5 years, he has joined back as a full-time devotee in 2016 in ISKCON Temple in US, and presently is preaching in Salt Lake City. He's a director of Institute of Vedic Science and Studies, through which he preaches young generation studying in local colleges. He's also lecturing in community colleges as guest lecturer for the students of philosophy and religion. So we're very, very fortunate to hear from such a very renowned, learned, scholarly devotee with us today for the first time. Please join me in giving a warm welcome by loudly chanting the Mahamantra together. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare. So for the next 3 weeks or next 3 Wednesdays, we will be hearing on the topic of the great Vaishnava saints of Maharashtra. And today's, if I'm not mistaken, the saint we will be hearing about is Ekanath Maharaj. Is that correct, Prabhuji? Yeah. Okay. So thank you, everyone. Please give your as much attention as possible. And if you can come on the screen, that would be wonderful. So Prabhu can see you as well. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Ramchandra Prabhu. Hare Krishna. So all are Marathi or? Not necessarily. So either it can be Hindi or English, whichever you're okay with. Yeah. Okay. Hindi bhi chalega. Originally, Krishna Bhakta Prabhu was going to speak in Hindi. Okay. Yeah. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो अभी ये जो आपने श्रृंखला शुरू की है, विशेष करके महाराष्ट्र के संतों के बारे में या उनके चरित्र के बारे में सुनने के लिए, तो महाराष्ट्र की इस वैष्णव परंपरा में जो द्वितीय श्रृंखला है वे है शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज। 12वीं सदी में श्री ज्ञानदेव महाराज ने भगवत गीता का अनुवाद मराठी में पहली बार किया था और वो था प्राकृत भाषा में। उस समय मराठी प्राकृत के नाम से जानी जाती थी और सामाजिक रचना ऐसी थी कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था और वेद शास्त्र पुराण ये सारे जो है इनका कथा या प्रवचन जो भी होता था वो संस्कृत भाषा में ही केवल होता था। समाज के अन्य लोगों को इन ज्ञान से उसके कारण वंचित होना पड़ता था। तो ज्ञानदेव महाराज ने सबसे पहले, हालांकि उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत कठिनाइयों के साथ उनको समाज ने स्वीकृति दे दी। महाराष्ट्र में तो उनको साक्षात विट्ठल का अवतार ही माना जाता है और उन्होंने जो भगवत गीता के ऊपर उनकी टीका लिखी जिसको हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं, वही ज्ञानेश्वरी संत एकनाथ या एकनाथ महाराज जो ज्ञानेश्वर महाराज के बाद 250 साल के बाद आए, तो उन 250 सालों के दरमियान तुर्क, मुगल और ये जो बर्बरिक लोग थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण की, तो उनके आक्रमण में ना केवल धन का ही क्षय हुआ भारतवर्ष में, बल्कि ज्ञान का भी बहुत सारा क्षय हुआ उनके उस अत्याचारों के कारण, क्योंकि वे लोग ज्यादा करके ब्राह्मण वर्ग को टारगेट करते थे। वे जानते थे कि अगर किसी समाज की रचना को या सामाजिक संस्था को या समाज को नष्ट करना है तो उस समाज में ज्ञान देने वाले जो लोग हैं उनको पहले खत्म करो। तो उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों का संहार करना शुरू कर दिया था। कई इन्वेंटर्स ऐसे थे कि वे ब्राह्मणों की हत्या करने के पश्चात उन ब्राह्मणों का अगर जनेऊ कोई कलेक्ट करके लाता तो जितने जनेऊ कलेक्ट किए उनके वजन के बराबर वो सोना दान में देता था। इसलिए वे बर्बरिक लोग ब्राह्मणों की अमानुष रूप से हत्या कर देते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, ग्रंथों को जलाते थे, गुरुकुलों को जलाते थे, ताकि किसी भी रूप से ये ब्राह्मण वर्ग है ये जो समाप्त हो जाए, ताकि ये जो वैदिक ज्ञान है ये आगे की पीढ़ियों को मिले ही नहीं। और उसी का प्रभाव इतना प्रचंड था कि ब्राह्मण अपने गुरुकुल ही बंद कर दिए उन्होंने और शास्त्रों के ऊपर चर्चा करनी ही बंद कर दी। इसलिए 250 साल तक ज्ञानेश्वरी की शुद्ध प्रत भी या एक भी प्रॉपर कॉपी जो है वो अवेलेबल थी नहीं। जैसे हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन चरित्र में देखते हैं कि जब उन्होंने इस गौड़ीय संप्रदाय को पुनर्प्रस्थापित करने का प्रयास किया तो चैतन्य चरितामृत की शुद्ध प्रत या शुद्ध कॉपी मिलने के लिए इट टुक ऑलमोस्ट 35 years फॉर हिम।
और उसके बाद उन्होंने उस चैतन्य चैतामृत का जो ग्रंथ है उसको पुनर्संपादित करके फिर उसको पब्लिश किया था। तो वही कार्य श्री एकनाथ महाराज जी ने 15वीं सदी में किया था। उनका जन्म जो है वो एक ऋग्वेदी ब्राह्मण के कुटुंब में, पैठन, जिसको प्रतिष्ठानपुर करके अपने पुराणों में जाना जाता है। जैसे कहा जाता है कि भारतवर्ष में अगर संस्कृत का ज्ञान पाना हो तो आपको काशी में जाके अध्ययन करना हो। और भगवान का जो तीर्थ रूप है या तीर्थ स्वरूप हम जिसको कहते हैं, कि जिसमें भगवान के चरण कमल यानी उज्जयिनी है, भगवान की कटी यानी कांची है, भगवान का वक्षस्थल और कंठस्थल यानी मथुरा है, और भगवान का माथा यानी अयोध्या है। तो उसी प्रकार से भगवान की नाक यानी काशी मानी जाती है। इसीलिए काशी का कोई भी साधारण ब्राह्मण भी भारतवर्ष के किसी भी ब्राह्मण से टक्कर दे सकता है ज्ञान में, क्योंकि काशी ये ज्ञान का स्थान माना जाता है। तो जिस प्रकार से काशी ये ज्ञान का स्थान माना जाता है, तो वहां पे रहने वाले अधिक ब्राह्मण जो है उनका मूल आप ढूंढोगे तो वे सारे आपको प्रतिष्ठानपुर यानी पैठन के मिलेंगे। क्योंकि जैसे धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे धर्म ग्रंथ है जिनके ऊपर मनु संहिता के पश्चात अगर मनुष्य मात्र के लिए ग्रहण करने वाला योग्य या आचार करने वाला जो धर्म है, उस धर्म को संपादित करने के लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के जो लेखक है वे नारायण पंडित प्रतिष्ठानपुर के ही है। तो उस प्रतिष्ठानपुर में सूर्य नारायण और रुक्मिणी देवी के पुत्र श्री एकनाथ जी का जन्म 1500 सदी में 1533 में हुआ था। उनकी जन्म तिथि और उनकी तिरोभाव तिथि एक ही है। उनका जन्म भी इसी फाल्गुन वद्य षष्ठी को हुआ था। वद्य यानी ब्लैक, जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी में फाल्गुन मास में उनका जन्म हुआ था। और मूला नक्षत्र के ऊपर जन्म होने के कारण, जैसे तुलसीदास जी का भी जन्म मूला नक्षत्र पे ही हुआ था, तो मूला नक्षत्र पे जन्म होने के कारण अपनी बाल अवस्था में ही माता और पिता का उनको विरह हुआ, प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों का शरीर छूट गया। तो उनकी देखभाल जो है बचपन से ही उनके जो दादा थे चक्रपाणी और उनकी पत्नी है, उनकी दादी जो है, वो उन्होंने उनकी देखभाल की। और आयु के 6 साल में ही उनका उपनयन किया गया। और उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वैसे संपन्न परिवार से थे, तो उनको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक वहां पे रखे थे। और तो उन्होंने 2 साल में ही संस्कृत का अध्ययन किया, महाभारत, रामायण, वेद मीमांसा और 18 पुराण, इनका अध्ययन केवल 2 वर्ष में उन्होंने किया था संत एकनाथ जी ने। आप सोच सकते हैं कि आज 6 में उनका उपनयन हुआ और 8 साल की आयु में उन्होंने इन सारे ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया। उनकी वो कुशाग्र बुद्धि और विशेष करके भगवान के प्रति जो आर्द्र भाव था, और भगवान के प्रति जो उनकी प्रखर भक्ति थी, उसके कारण उनके जो दादाजी थे वे सोच रहे थे कि ये शायद संन्यास लेके भाग जाएगा। और हुआ ऐसे ही कि आयु की जब 12 वर्ष थे, तो उन्होंने संत जनार्दन स्वामी के बारे में बहुत सुना था, जो देवगिरी के उस समय के जो सुल्तान थे, उनके वहां पे वे खजानीस का यानी ट्रेजरर का काम किया करते थे। तो जब उन्होंने जनार्दन स्वामी के बारे में सुना और उनके भक्तिमय जीवन के बारे में सुना, तो एकनाथ जी बहुत प्रभावित हो गए।
और बिना किसी को बोले वे सीधा देवगिरी निकल गए प्रतिष्ठानपुर से। उस जमाने में कोई भी यात्रा करनी हो तो पैदल ही करनी पड़ती थी, क्योंकि ना तो ट्रेन थी और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इजीली अवेलेबल था। तो पैदल ही अकेले निकल गए किसी को बिना बोले ही। और जाके उन्होंने वहां पे जनार्दन स्वामी के घर पे जाके दरवाजे पे खड़े हो गए। जनार्दन स्वामी जो थे, हालांकि गृहस्थ थे, लेकिन वे भगवान श्री दत्तात्रेय के बहुत बड़े भक्त थे। और भगवान श्री दत्तात्रेय ने उनको स्वप्न में दृष्टांत दिया कि तुम्हारे पास एक बालक आ रहा है, उसे तुम शिक्षा प्रदान करो और अपना शिष्य के रूप में स्वीकारो। और महाराष्ट्र के संतों में हम देखते हैं कि ज्यादातर संत जो है वो इसी दत्त संप्रदाय से ही आते हैं, भगवान दत्तात्रेय के संप्रदाय से, जो शुरू होता है भगवान श्री नारायण, ब्रह्मदेव, अत्रि ऋषि, उसके बाद दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय के बाद जनार्दन स्वामी को माना जाता है इस दत्त संप्रदाय में। और दत्त संप्रदाय में भगवान के ज्ञान स्वरूप की जो है वो भक्ति की जाती है, क्योंकि दत्तात्रेय को ज्ञान अवतार माना जाता है यहाँ पे। और जैसे हम भागवत में भी देखते हैं कि अवधूत, जिनके 24 गुरु थे, वे अवधूत और कोई नहीं, यही भगवान दत्तात्रेय ही है, जिनके 24 गुरु थे। और उसी दत्त संप्रदाय में जनार्दन स्वामी जी ने एकनाथ महाराज को उपदेश दिया। एकनाथ महाराज जी को बचपन से ही भगवान श्री विष्णु के प्रति इतनी आसक्ति थी, तो सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में अगर कोई कार्य किया तो वो है भावार्थ दीपिका नाम के ग्रंथ की रचना की, जो कि ज्ञानेश्वरी के ऊपर उनकी टीका है। सबसे पहले उन्होंने ज्ञानेश्वरी की शुद्ध प्रत बनाई, और उसके पश्चात, क्योंकि 250 साल में प्राकृत से मराठी भाषा शुरू हो गई थी, जो लोक प्रचार में लोगों के व्यवहार में आ रही थी, तो उन्होंने उसी को, जो भावार्थ ज्ञानेश्वरी जो है, उसको भावार्थ दीपिका के रूप में मराठी में उन्होंने शुरू कर दी और पुनः उसका प्रचलन सामान्य जनों में लेके आए। जो पंढरपुर की वारी है, जो ज्ञानेश्वर महाराज ने शुरू की थी आळंदी से, उसी वारी को पैठन से श्री एकनाथ महाराज ने फिर से शुरू कर दिया। ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव महाराज के प्राकट्य के बीच में एकनाथ महाराज का प्राकट्य हुआ था। और ये जो वारकरी संप्रदाय है, जिसका मूल अगर हम ढूंढते हैं तो 4 वैष्णव में से जो रुद्र संप्रदाय है, उस संप्रदाय को ये वारकरी संप्रदाय माना जाता है। उसी रुद्र संप्रदाय का ही एक रूप ये वारकरी संप्रदाय है। फिर कहा जाता है कि श्री ज्ञानेश्वर जी की जो आळंदी की समाधि है, उसका पुनः जीर्णोद्वार, और जैसे हम देखते हैं कि महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामियों को भेजकर वृंदावन का जीर्णोद्वार किया था, फिर से भगवान की लीला स्थली प्रकट की थी, तो उसी प्रकार से एकनाथ जी ने ज्ञानेश्वर जी की समाधि को पुनः प्रकट किया था, क्योंकि वो 250 साल में वो समाधि का स्थान भी लुप्त हो गया था, लोग भूल गए थे। एक दिन एकनाथ जी को स्वप्न दृष्टांत हुआ कि ज्ञानेश्वर जी उनको बता रहे कि मेरा जो गला है वो फांसी के फंदे जैसा, वो अजान वृक्ष जो कहा जाता है वहां पे, उस वृक्ष के मूल के कारण पूरा, वो जो मूल है वृक्ष का, वो उनके गले में पूरा ऐसा अटक गया है। तो फिर वो स्थान पे जाके उन्होंने वो जो वृक्ष था उसकी मूल जो है, जड़ जो है, वो उन्होंने काट के वहां पे किया था, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके फिर उन्होंने आगे कई सारे ग्रंथों की रचना की।
तो मराठी भाषा में सबसे पहले उन्होंने अभंग की रचना शुरू कर दी। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने भी हरिपाठ यानी 25 ओवी, जिसको मराठी में कहते हैं, उसका उसकी रचना की थी। वैसे ही और 25 ओवियों की रचना हरिपाठ करके एकनाथ महाराज ने भी की थी, जो नित्य पाठ में, जैसे हम मंगलाचरण करते हैं, वैसे ही वारकरी संप्रदाय में हरिपाठ नित्य का रहता है। तो नित्य हरिपाठ करने के लिए उन्होंने उन 25 श्लोकों की रचना की थी। उसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद पे, जहाँ पे, जिसको हम उद्धव गीता कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया था, जो कि 1367 श्लोक है उसमें, व्यासदेव रचित श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। तो उसी के ऊपर 18,881, 18,881 ओवी एकनाथ महाराज जी ने लिखे, और एक बड़ा ग्रंथ उन्होंने किया। मुझे मालूम नहीं आपको अगर उनके बारे में कुछ मालूम है तो, भगवान स्वयं उस समय जब एकनाथ जी इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो भगवान स्वयं स्वयं उनके घर में आकर उनको मदद किया करते थे। श्रीखंडिया उनका नाम था उस समय। और श्रीखंडिया के नाम से उनके घर का नौकर बनकर भगवान उनके यहाँ पे, जब तक ये ग्रंथ की रचना चल रही थी, उस समय तक उनके घर पे रुके हुए थे। और उनकी इतनी विशेषता थी कि उन्होंने किया हुआ कीर्तन सुनने के लिए, क्योंकि वारकरी संप्रदाय में कथा नहीं होती है, कीर्तन होता है, और कीर्तन में ही फिर कथा बताई जाती है। तो संगीत, गद्य और पद्य दोनों एक ही साथ होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वारकरी संप्रदाय के जितने भी हमारे संत हुए, वे संगीत तज्ञ भी थे और काव्य तज्ञ भी थे। वो खुद का काव्य भी करते थे और उसको अलग अलग रागों में गाते भी थे, और गद्य में उसका विश्लेषण भी किया करते थे। तो एकनाथ जी का कीर्तन सुनने के लिए देवता भी आते थे। आज भी वर्णन है कि प्रतिष्ठानपुर में जब एकनाथ जी का कीर्तन चलता था, तो लाखों की संख्या में लोग आके बैठते थे उनका कीर्तन सुनने के लिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं कि जब महाप्रभु कीर्तन की नगर संकीर्तन करते हुए चलते थे, तो उनको लाखों लाखों लोग उनको फॉलो करते थे। तो वैसे ही एकनाथ जी का जब भी कीर्तन हुआ करता था, यहाँ पे लाखों लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए, लाखों लोग तो क्या, स्वयं भगवान श्रीखंडी के रूप में आके सामने बैठ जाते थे उनका कीर्तन सुनने के लिए। बीच में उनको जल देते थे, उनकी उनकी पाद सेवा भी करते थे। केवल उन्होंने भागवत की नहीं रचना की, एक बार प्रभु रामचंद्र स्वयं उनको प्रकट हुए, और रामचंद्र जी ने उनको कहा कि बहुत भागवत की कथा सुनाई आपने, अब मेरे लीलाओं का गुणगान करो। तो महाराष्ट्र में पहली बार मराठी भाषा में भावार्थ रामायण ग्रंथ का लिखान हुआ। जैसे वाल्मीकि रचित रामायण में 24,000 श्लोक है, भावार्थ रामायण में 40,000 ओवियां है। और ये भावार्थ रामायण उन्होंने हनुमान जी को 108 बार सुनाया था पूरा होने से पहले। जैसे हम तुकाराम महाराज की गाथा के बारे में सुनते हैं कि इंद्रायणी ने स्वयं लाके उनको दे दी थी, तो वैसे ही इनके भागवत और रामायण के बारे में कहा जाता है कि उनके जो प्रतिस्पर्धी ब्राह्मण थे, उनको उनके प्रति द्वेष था, तो वो लोगों ने उनका त्याग कर दिया। तब यहाँ पे बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार, उनको बॉयकॉट कर दिया था। क्योंकि जितने भी हमारे वैष्णव संत हुए, चाहे भारत के किसी किसी भी कोने के हो, उन्होंने न केवल भक्ति का मार्ग दिया, बल्कि उन्होंने एक सुव्यवस्थित समाज की रचना भी की।
आजकल जो हम ये लिबरल कहते हैं या जात पात को न मानना, इसकी शुरुआत ही वैष्णव संतों ने की है। जैसे 1100 सदी में श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सबसे पहले किया था कि उन्होंने ब्राह्मणेतर जो वर्ण है उनको भी मंदिर में पूजा का अधिकार दे दिया था। शूद्रों को भी उन्होंने पंच संस्कार से पांचरात्रिक विधि से भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा करने का विधान दे दिया था। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में सबसे पहली शुरुआत की थी एकनाथ महाराज ने। उन्होंने जो निम्न जाति के लोग माने जाते, जिनको अस्पृश्य कहा जाता था, उन अस्पृश्य लोगों के घर में जाके वे कथा करते थे, कथा कीर्तन करते थे। और इसलिए आप देख सकते हैं कि मराठी भाषा में जो भारूड है या गवळण है या फिर गोंधड़ है, और क्या कहते हैं उसको, जो भी लोक गीत के यानी फोक सॉन्ग जो थे, उनकी उन फोक सॉन्ग्स में एकनाथ महाराज ने भागवत का तत्वज्ञान दे दिया, ताकि ये भागवत का ज्ञान जो है ये समाज के सबसे निचले स्तर तक के लोगों को प्राप्त हो। और इसीलिए उन्होंने कई सारे भारूड जो है उनकी रचना की, जिनमें उन्होंने उस समय के स्त्रियों के दुख को समाज के सामने प्रकट किया। क्योंकि पहले तो बाल विवाह हुआ करते थे, कोई पूछता भी नहीं था, उनके विवाह बचपन में ही कर दिए जाते थे, तो उनके जो दुख है वो कौन बोलेगा। तो उसी में ही उन्होंने जब कोई स्त्री माड़ीन है, माड़ीन यानी जो फूल या फूलों के गार्लैंड्स वगैरह जो बनाती है वो है, परटीन है यानी जो धोबी है, धोबी की पत्नी है, या फिर भटीन यानी ब्राह्मण की पत्नी है, तो उनके जो दुख है, उनके जो दर्द है, वे समाज के सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काव्यों की रचना की। और साथ ही साथ उन्होंने भागवत का तत्व ज्ञान भी उसके साथ दिया। आप में से कई मराठी लोग होंगे और मालूम नहीं, आपके बचपन में अगर कभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि एक वासुदेव करके व्यक्ति आता था घर में, वासुदेव वाला, रे वासुदेव वाला, और वो आके फिर कुछ भगवान श्री कृष्ण की कथाएं बताएगा और भिक्षा आपसे लेगा और निकल जाएगा। तो इसकी शुरुआत भी एकनाथ महाराज ने की थी उस समय, क्योंकि उस समय मुगलों का इतनी अराजकता थी कि वे कहीं एक जगह पे बैठ के लोगों को कथा कीर्तन भी नहीं करने देते थे। तो ऐसे समय पे हर एक व्यक्ति के द्वार पर इस भागवत के तत्वज्ञान को पहुंचाने के लिए उन्होंने इस वासुदेव का जो कैरेक्टर है उसको उन्होंने जन्म दिया। तो आप सोच सकते हैं, वे कुलकर्णी परिवार से थे, और कुलकर्णी परिवार से होने के पश्चात भी इन अस्पृश्य लोगों के दरवाजे पे जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रवृत्त करा, यानी उस व्यक्ति को इतना उसके हृदय में कॉन्फिडेंस जगाना कि ये कार्य महत्वपूर्ण है और इससे पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है। ये कार्य उस समय एकनाथ महाराज ने किया था। और उनका स्वभाव इतना शांत था, इसलिए उनको शांति ब्रह्म कहते हैं। उनके ऊपर इतने सारे लांछन लगाए गए, उनको समाज से बहिष्कृत किया गया, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, गोदावरी प्रतिष्ठानपुर यानी आज का जो पैठण है वहां से गोदावरी नदी बहती है, और गोदावरी नदी के तट पे ही यानी दक्षिण की गंगा जिसको कहा जाता है उसके तट पे ही प्रतिष्ठानपुर है। तो उसकी रेती में एक अस्पृश्य का बच्चा, क्योंकि वहां बहुत ड्राई एरिया है और समर की जो धूप होती है वहां पे इट्स जस्ट लाइक अ डेजर्ट, तो वो बच्चा तप रहा था उस, और वे वहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत उस बच्चे को उठाया और अपने कंधे पे ले लिया। और उस जमाने के समाज में किसी अस्पृश्य को स्पर्श करना यानी उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाता था। उन्होंने उसकी चिंता भी नहीं की, उस बच्चे को उठाया, अपनी गोद में लिया, अपना जो जल लेके जाते थे पीने के लिए लोटे में, वो जल वो बच्चे को उन्होंने पिला दिया और उसकी माँ के पास जाके छोड़ दिया। तो उस जमाने के जो ब्राह्मण समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया। उनके घर पे उनके पितरों के श्राद्ध थे, तो उस श्राद्ध में कोई ब्राह्मण गया ही नहीं खाने के लिए।
तो साक्षात पितर यानी आर्यमा, यमराज और स्वयं ब्रह्मा जी उनके घर पे आके पितरों का श्राद्ध का भोजन किया था। तो भगवान ने ऐसे महान हस्ती को यहाँ पे भेजा था उस समय इस धर्म को प्रस्थापित करने के लिए। तो जब उन्होंने वो भावार्थ रामायण लिखा तो उसके बारे में कहते हैं, कई बार हमारे कुछ लोग हैं, हमारे प्रचारक है, वे समझते हैं कि ये मायावादी है। ज्ञानेश्वर मायावादी है, संत एकनाथ मायावादी है, नामदेव मायावादी है, क्योंकि वे अद्वैत का प्रचार करते हैं। लेकिन ये भ्रम है, कि हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हम पूरी तरह से उनके दिए हुए ज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं। अगर कोई भी भावार्थ रामायण पढ़ेगा तो उसमें एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठी रहती है और वहां पे एक राक्षसी रहती है, उसका नाम रहता है त्रिजटा, जिसको विभीषण ने माता की सेवा के लिए रखा होता है कि आप उनका अच्छी तरह से देखभाल करो करके। तो वो त्रिजटा एक बार देखती है कि सीता माता जो है वो बहुत प्रसन्न है, उनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतना सुख, इतना आनंद कभी त्रिजटा ने देखा नहीं था। तो वो पूछती है कि क्या है, आज ऐसा क्या अनुभव कर रही हो आप कि इतना सुख, इतना आनंद आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा। तो सीता माता बताती है कि मैं आज अपने आप को श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में ही देख पा रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं स्वयं राम बन गई, क्योंकि उनका चिंतन प्रभु रामचंद्र जी के बारे में इतना प्रगाढ़ हो गया था, इतना प्रखर चिंतन हो गया था कि वो अपना अस्तित्व ही भूल गए और पूरा राममय बन गए। तो बोली वही जो पूरी तरह से मैं भगवान की बन चुकी थी और भगवान के स्वरूप हो गई थी, तो वही वो आनंद तुम्हें दिखाई दे रहा था। तो त्रिजटा उनको बोल देती कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर प्रभु रामचंद्र को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, आप ही रामचंद्र बनिए, तो आप ही बाण निकालो और रावण को मार दो, आपके लिए क्या कठिन है वो। तो उस समय माता सीता कहती है कि ये जो अनुभव है, ये अनुभव मैं इसलिए कर पा रही हूं क्योंकि मैं सीता हूं। अगर मैं राम बन जाऊं तो ये जो आनंद है ये मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं वही रहनी चाहती हूँ जो मैं हूं। मैं राम नहीं बनना चाहती हूँ, तो मैं सीता ही रहना चाहती हूँ। और फिर वहां पे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी की मछली जो रहती है वो पानी में ही रहती है, लेकिन जब उस पानी की मछली को श्वास लेना होता है तो वो क्या करती है, वो पानी से ऊपर आकर अपना मुंह खोल के श्वास लेती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। तो बोले भक्ति वो साधन है, ज्ञान आपको सुख दे सकता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति जो है वो भक्ति से होती है, और भक्ति तभी होती है जब आप भगवान से अपना अस्तित्व अलग समझ लेते। और इसलिए एकनाथ महाराज कहते हैं कि तू देव मी दास हा माझा भाव सदा राहो, कि आप मेरे भगवान हो और मैं आपका सेवक हो, ये जो मेरा भाव है ये नित्य रूप से रहे। जो भगवत गीता का तत्व ज्ञान है, जहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं कि ममयांश जीवलोके जीवभूत सनातन। अगर इतना प्रखर तत्व ज्ञान जो इतनी सरल भाषा में सामान्य व्यक्ति को दे रहे, क्या वो व्यक्ति अद्वैतवादी या मायावादी हो सकती है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, हो सकती है? नहीं। नहीं ना। फिर उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे रुक्मिणी स्वयंवर है। आज भी महाराष्ट्र में अगर किसी उपवर कन्या का विवाह नहीं होता है समय पे, तो उसे कहा जाता है कि श्रावण से लेकर कार्तिक तक आप रुक्मिणी स्वयंवर का पाठ करो। और पिछले 600 सालों का ये इतिहास है और प्रमाण है कि जितने भी
कन्याओं ने इस रुक्मिणी स्वयंवर का पाठ किया है, वो कार्तिक के तुलसी विवाह के पश्चात ही उनका विवाह हो चुका है। इतने सुंदर रूप से उन्होंने वो रुक्मिणी स्वयंवर यानी रुक्मिणी हरण की जो लीला है दशम स्कंद की, उतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है लोक भाषा में या मराठी में कि अगर आप कभी पंढरपुर आते हो तो चातुर्मास में, पूरे चातुर्मास माता रुक्मिणी के सामने एक बान भट्ट करके परिवार है, वो कई शतकों से यही कार्य कर रहे हैं कि हर चातुर्मास में रुक्मिणी स्वयंवर का रुक्मिणी स्वयंवर की जो नित्य कथा है वो उनके परिवार का यही एक व्यक्ति कई शतकों से, for last few centuries they are doing it। तो ऐसे रुक्मिणी स्वयंवर का भी रचना उन्होंने की थी। उसके पश्चात मेरे ख्याल से और 4 ग्रंथ है जो महाराष्ट्र में आज भी पढ़े जाते हैं। जैसे एकनाथी भागवन है जहाँ पे उन्होंने पूरा 11वें स्कंद के ऊपर ओविबद्ध मराठी में टीका लिखी है। फिर चतुश्लोकी भागवत है। फिर जैसे तुकाराम महाराज की गाथा है वैसे भी एकनाथ महाराज की अभंग गाथा है। फिर उनके द्वारा किया हुआ हरिपाठ है जिसमें 25 अभंग है। फिर हस्तमालक करके उन्होंने एक टीका लिखी हुई है। फिर उन्होंने शुक अष्टक टीका भी दी है। शुकदेव जी के ग्लोरिफिकेशन में एक अष्टक लिखा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने मराठी में टीका लिखी हुई है। फिर स्वात्मबोध नाम का एक ग्रंथ लिखा है। जैसे आगे जाके यानी इनके पश्चात समर्थ रामदास आए जिन्होंने दासबोध लिखा, वैसे ही उन्होंने स्वात्मबोध नाम का ग्रंथ की रचना की है जिसमें उन्होंने एक साधक का जो अनुभव है भक्त साधना करते समय और साधना के शुरू में, साधना करते समय और साधना के सिद्धि के प्राप्ति के पश्चात जो बोध है या जो उसका अनुभव है उसका उसमें दिया है। फिर चिरंजीव पद करके एक उन्होंने ग्रंथ की रचना की कि कैसे सामान्य व्यक्ति भी शाश्वतता को प्राप्त कर सकता है यानी चिरंजीवी हो सकता है, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। फिर आनंद लहरी करके है। आप नाम से ही सोच सकते हैं कि कोई अद्वैत व्यक्ति आनंद के बारे में सोच सकता है क्या? तो उन्होंने आनंद लहरी लिखी है कि जिसमें पूरी तरह से वे वर्णन करते हैं कि भगवान के भक्ति में या भगवान का दास्यत्व स्वीकारने में जो सुख है, जो आनंद है, उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका वहां पे लिखा है। फिर मुद्रा विलास करके ग्रंथ की रचना की है कि जिसमें भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। हमें लगता है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का केवल और या प्रभु रामचंद्र जी के दिव्य लीलाओं का वर्णन केवल हिंदी भाषा में ही किया हुआ है या उत्तर प्रांतीय लोगों ने किया हुआ है, बल्कि वैसा नहीं है। उनके दिव्य लीलाओं का वर्णन मराठी भाषा में भी संत एकनाथ जी ने करके रखा था। फिर मुद्रा विलास हो गया, उसके पश्चात उन्होंने लघु गीता भी लिखी है। भगवत गीता के ऊपर मराठी में एक छोटी सी टीका है उनकी जिसको लघु गीता भी कहा जाता है। और फिर समाज को जगाने के लिए उन्होंने फिर अभंग, गवळणी, भारूड इत्यादि की रचना की है। फिर ज्ञानेश्वरी को भी उन्होंने वापस से समाज में पुनः प्रस्थापित किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे कलयुग में हम देखते हैं कि हर कोई वैरागी नहीं बन सकता है, हर कोई संन्यास नहीं ले सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है? एक्चुअली जनार्दन स्वामी के तिरोभाव के पश्चात जो ट्रेजरर का काम था वो नामदेव महाराज ने ले लिया था। तो वे दौलताबाद के वे खजानीस भी थे, यानी उस जो भी कोई उस जमाने का जो
तुर्कस्तान का जो भी कोई आके बैठा हुआ था इन्वेंटर, उसके वहां पे उन्होंने काम भी किया है। और कहते तो एक बार तो उन्होंने उस फोर्ट की, यानी जो दौलताबाद का गढ़ है उसका, या जिसको देवगिरी गढ़ भी कहा जाता है, उसकी रक्षा के लिए स्वयं एक बार सेना में भी शामिल हो गए थे, सेना को भी लीड किया था, हाथ में तलवार लेके वो लड़े भी थे। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति भागवत तत्व का पालन कर रही है, वे हाथ में तलवार लेके खड़ी भी थी युद्ध के समय। तो वर्तमान समाज के रचना के अनुसार और जो भी सोशल सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार किस प्रकार से अपने तत्व ज्ञान को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं, इसकी शुरुआत संत एकनाथ जी ने की है 15वीं सदी में। उन्होंने अपने आचार से, अपने विचारों से ही प्रचार किया, और उसी कारण आज तक उनके बारे में लोग जानते हैं। और इतना सारा करने के बाद उनके जो काम की व्यापकता है उसको थोड़े लिमिटेशंस आ गए, क्योंकि बीच में कई सारे जैसे आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, अपसंप्रदायी लोग आ गए। गौड़ीय संप्रदाय में भी 13 प्रकार के अपसंप्रदाय आ गए, उसी प्रकार से वारकरी संप्रदाय में कई प्रकार के अपसंप्रदाय आ गए, जो उन्होंने केवल इस जैसे इन्होंने गौड़नी, भारुड़ और अलग अलग प्रकार के जो गीत है उनकी रचना की थी, वैसे ही भौतिकवादी रचनाएं कई लोगों ने की, और उसका प्रचलन ज्यादा होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके जो भागवत का तत्व ज्ञान है वो उसमें से निकल गया। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल वो कहीं सुनने के लिए भी नहीं मिलते। लेकिन उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं, और खास करके हम देखते हैं कि पुणे का कुछ ब्राह्मण वर्ग है, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा है। और आज भी उनका जो नाथ संप्रदाय है, उस नाथ संप्रदाय में आज भी उन ग्रंथों के ऊपर चर्चा होती है, कथाएं होती है। और विशेष करके वे लोग थोड़ा सा अलग मानते हो संप्रदाय, क्योंकि वहां पे भगवान दत्तात्रेय की पूजा ज्यादा होती है, तो लोग थोड़ा सा उनको अलग समझते हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी है। वैसे भगवान विट्ठल, रुक्मिणी और दत्तात्रेय में इतना अंतर है नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ही अलग अलग रूपों में आके अलग अलग कार्य करते हैं। तो और एक विशेष प्रकार से उनके बारे में कहा जाता है कि न केवल उन्होंने भागवत का प्रचार किया, बल्कि उन्होंने उस समय में जब इस्लामिक राजाओं के राज्य में रहकर भावार्थ रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें राम राज्य किस प्रकार से किया जाता था, और उस राम राज्य का जो मूल है, या जो हम नींव कहते हैं, फाउंडेशन जो है, वो कैसे धर्म के ऊपर व्यवस्थित था, और उस धर्म को हर एक व्यक्ति, समाज के हर एक कुनबे का व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में उसको स्वीकारता है, उसका बहुत सटीक रूप से वर्णन किया था। और लोक भाषा में करने के कारण समाज के निम्न स्तर के लोगों तक उन्होंने वो पहुंचाया था। तो समाज की जागृति की, लोगों को सामाजिक, राजकीय और आर्थिक जो भी लॉसेस हो रहा था उस समय, उन सब में कैसे हमें डट के खड़े रहना है। और तथाकथित जो मराठी में जैसे हम ढोंगी कहते हैं, या इंग्लिश में प्रेटेंडर्स, और इन दाम्भिक लोगों से बचकर अपने धर्म की किस प्रकार से हमें रक्षा करनी है, उसका मार्ग उन्होंने सबके लिए प्रशस्त किया। उनकी 3 संतानें थी। एक सबसे छोटा उनको पुत्र था, उसका नाम था हरि, और 2 कन्याएं थी, एक का नाम था गोदावरी और एक का नाम था गंगा। तो उनकी जो बड़ी कन्या थी गोदावरी, उनके जो पुत्र थे वो बहुत बड़े कवि थे, और महाराष्ट्र में कई सारी काव्य रचनाएं उनकी है, जो एकनाथ महाराज के जैसे ही प्रभावशाली है। और उनके जो पुत्र थे हरि पंडित, वे भी एकनाथ महाराज जी के पश्चात उन्होंने
बहुत अच्छी तरह से, एक्चुअली उन्होंने ही एकनाथ महाराज के पादुकाओं को प्रतिष्ठानपुर से पंढरपुर लाने की प्रथा शुरू कर दी। वो एक वारी उन्होंने शुरू कर दी। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो हम जैसे प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं कि उनकी सारी संतानें तो भक्त नहीं बन पाई, केवल वृंदावन प्रभुपाद जी को मदद किया करते थे। उसी प्रकार से ये हरि पंडित जो है, जो एकनाथ जी के अपने ही पुत्र है, वे भी अपने पिता का तिरस्कार करते थे बाकी ब्राह्मणों को देखकर। और उन्होंने भी वो अस्पृश्य बच्चे को उठाने के कारण, जैसे ब्राह्मणों ने उनका बायकॉट कर दिया था, उन्होंने भी बायकॉट कर दिया अपने पिताजी का, और हर जगह पे उनका अवमान कर देते थे। लेकिन जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया कि उनको मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी क्या क्या है। जब भगवान स्वयं आके उस भागवत, जब एकादश स्कंद पे वे जब भागवत के ऊपर टीका लिख रहे थे, तो जब उनको मालूम पड़ा कि श्रीखंडाय ने स्वयं भगवान ही है, भगवान श्री विट्ठल ही आकर उस ग्रंथ की निर्मित तक एकनाथ जी के घर में रुक के उनकी सेवा कर रहे थे, जब उनको उसका एहसास हुआ, तब उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे पिता कितने महान है और मैंने कितना बड़ा अपराध किया। और फिर उन्होंने अपने पिता को अपने गुरु रूप में स्वीकारा, और उसके पश्चात उन्होंने भी बहुत सारे अभंगों की रचना की और अपने पिता के इस संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। और उनके हम जीवन से देखते हैं कि उनके चरित्र से हमें मालूम पड़ता है कि ऐहिक और पारमार्थिक दोनों चीजों को इसी जीवन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि वी कांट गिव अप एनीथिंग रादर देन गिविंग इट अप, बिकॉज नथिंग बिलोंग्स टू अस, सो वी कैन डू इट टिल दैट थिंग्स इन कृष्ण सर्विस। तो ये जो सिद्धांत है वैष्णवों का, ये एकनाथ महाराज जी ने अपने जीवन में पूरी तरह से दिखाया कि ये जो ऐहिक साधन है, यानी ये संसार के जो भी साधन हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं साधनों को हम आध्यात्मिक कैसे बनाकर भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। और भागवत धर्म को बहुत प्रबल किया उन्होंने, और ऐसे ऐसे लोगों के हृदय में उन्होंने भागवत धर्म की स्थापना की कि उस घनघोर परिस्थिति में जब पाश्चिमात्य आक्रांताएं आ रही थी, समाज को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी, तो उनकी उन शिक्षाओं के कारण समाज के निचले स्तर के लोगों ने भी इस भागवत धर्म को पूरी तरह से अपनाया। और हम देखते हैं आज भी कि वारकरी संप्रदाय में सारे समाज के ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक के सारे लोग आते हैं, उसकी नींव ही संत एकनाथ जी ने उस समय डाली थी। और सबसे महत्वपूर्ण था उनका आचार। किसी भी परिस्थिति में कितने भी प्रकार के दोष आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन उन्होंने कभी अपना मन विचलित नहीं किया। जैसे भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि आप बताइए कि स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा, स्थित की प्रभाषेत किम आसीत किम वच। तो जब हम एकनाथ जी का चरित्र पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी किस प्रकार से उस स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और केवल प्राप्त नहीं करता बल्कि समाज के विरुद्ध जाकर भी सामाजिक संरचना को चैलेंज करके इस भागवत सिद्धांत की प्रस्थापना कैसे करता है। और उनके जो प्रचार की जो नींव थी वो दो चीजों पे स्थापित थी। एक थी अंधश्रद्धा का निर्मूलन करना, और सेकंड था कि जीवों के ऊपर दया करना, भूत दया। जैसे महाप्रभु ने तीन चीजें बताई थी, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। तो यही सिद्धांत एकनाथ जी ने आज से, या महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व ही महाराष्ट्र में उन्होंने वो शुरू किया था। उनका सबसे
महत्वपूर्ण एक रचना है जिसको रोड़गा कहा जाता है, रोड़गा। उस, जो मैंने पहले ही बताया कि समाज, स्त्रियों के ऊपर समाज के द्वारा किए जाने वाले जो अत्याचार है उनको एक वाचा देने का कार्य इस रोड़गा के द्वारा उन्होंने किया था। तो हम देखते हैं कई बार हमारी धारणा हो जाती है, आजकल तो हम इस्कॉन में कह रहे हैं हमें क्या लेना देना है सोसाइटी से, छोड़ दो, हम बस अपना जप करते रहेंगे, अपनी साधना करते रहेंगे, हो जाएगा। अगर कोई सेंसिटिव वैष्णव हो, जो सही में गंभीर वैष्णव हो, तो ऐसी बात कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जहां पे हम रह रहे हैं अगर वही स्थान शुद्ध ना हो तो हमारी साधना कैसे हो सकती है। और अपनी साधना और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से अगर हम जहां पे रह रहे हैं उस वातावरण को अगर शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, और हमारे आचार्य ने करके दिखाया है, भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में भी हम देखते हैं कि उन्होंने ओडिशा में सबसे पहले आंग्ल भाषा का शिक्षण पद्धति शुरू किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। तो उसी प्रकार से एकनाथ जी ने भी समाज के निम्न स्तर के लोगों को शिक्षा प्रदान करके उनको समाज में स्थान देने का प्रयास किया। हालांकि उनकी आयु जो थी वो केवल 66 ईयर की थी। 1533 में उनका जन्म हुआ और 1599 में उन्होंने शरीर का त्याग किया, और वो भी उसी दिन पे। एक्चुअली उनका शरीर छूटने से पहले वे भावार्थ रामायण एक्चुअली थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वे पूरा नहीं कर पाए। तो उस समय उन्होंने श्रीखंडा, तब भगवान वापस आए थे श्रीखंडा बन के, तो उनको उन्होंने कहा था कि अभी 1 महीना बचा हुआ है। जैसे मेरे गुरुजी ने फाल्गुन वद्य षष्ठी को शरीर त्याग दिया था, उसी प्रकार से मैं भी अपना शरीर त्याग देने वाला। और उन्होंने कहकर अपने शरीर का त्याग किया था। उन्हें लगा कि अब मैंने जो कार्य करना है मुझे, उस कार्य की परिपूर्णता हो गई है, तो मैं अपने शरीर को अभी छोड़ सकता। और उन्होंने फिर अपना शरीर छोड़ दिया। तो इससे हम देखते हैं कि जितने भी वैष्णव आचार्य हुए भारत के किसी भी कोने में, अगर उनका हम चरित्र देखते हैं तो चरित्र में बहुत सारा साधर्म्य हमें दिखाई देता है कि उनके कार्य को प्रस्तावित करने के लिए स्वयं भगवान कई रूपों में आके उनको कैसे मदद करते हैं। भगवान की भक्तवत्सलता और इन भक्तों का भगवान के ऊपर पूरी तरह से विश्वास। जैसे हम अपराध क्षमा या याचना में एक श्लोक बोलते हैं कि प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्, कि हे गोविंद, मैं अपने प्राणों को धारण करता हूं क्योंकि आपने लिया हुआ जो वचन है वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। इसीलिए हम इन आचार्यों को देखते हैं कि बिंदास भिड़ जाते थे समाज के साथ, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे भगवान है जो मुझे बचाने वाले हैं। और इसीलिए भगवत कार्य को उन्होंने बहुत सटीकता से, बहुत ही प्रामाणिकता से अपने आचारों के द्वारा इस समाज में उन्होंने स्थापित किया। तो आइए ऐसे महान आचार्यों के बारे में कथा करके, कथा सुन के अपने जीवन को हम प्रभावित करें, क्योंकि यही हमारे रियल टाइम हीरोज हैं, जिन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि किस प्रकार से इस भक्ति को हम हमारे, और ज्यादातर हम वैष्णव संप्रदाय में हम ज्यादातर देखते हैं कि जितने भी हमारे महान आचार्य हुए वे गृहस्थ आश्रमी ही थे, जिन्होंने ऐहिक कार्य करते करते ही पारलौकिक सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। और इनकी कृपा से आज हम, आप सब लोग जहां पे भी दुनिया में जिस कोने में भी है, इनकी ही दया के कारण, इनके ही आशीर्वाद के कारण जहां पे हम है वहां पे भगवत भक्ति कर पा रहे। तो ये है संक्षिप्त चरित्र
एकनाथ महाराज का, कि जिसे हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसे महाजन हुए जिन्होंने इस भागवत धर्म को बहुत ही सुंदर रूप से समाज में प्रस्थापित किया। ये इनके इनकी काव्य कुशलता के बारे में बहुत अच्छा कहा जाता है। वे कहते हैं कि वे संत कवि थे, वे पंत कवि थे और वे तंत कवि थे। वे संत कवि थे क्योंकि उन्होंने जो काव्य किया वो आप पढ़ोगे तो आपके हृदय को बहुत शांत कर देता है। वे पंत कवि थे क्योंकि इतना स्कॉलरली उन्होंने लिखा है। भागवत जैसे संस्कृत ग्रंथ को मराठी भाषा में सरल सरल और सुगम करके देना ये कोई पंडित ही कर सकता है। और वे तंत कवि थे क्योंकि उन्होंने समाज के हर एक तंतु को, हर एक धागे को बिखरने से बचाया था और उस पूरे तंत्र को या तंत्र को इकट्ठा करके भगवान की सेवा में लगाया था। बोलो श्री संत एकनाथ महाराज की जय। जय। बहुत धन्यवाद आपका। जय। धन्यवाद आपका भी।